So hello and welcome student to our YouTube channel, that is BioMind, and myself Prabhudas Nayak, your science teacher. So today we are going to learn about the chapter number 1, that is exploring the investigative world of science. It's an first chapter of an updated syllabus of NCERT. Whatever the update have been made in the syllabus, it's an first chapter of that syllabus. Last year we are having some different chapters, some concepts were different, but this year NCERT have changed your syllabus and some new topics have been added in your syllabus, and out of that the first chapter, which is we are going to start or learn throughout this lecture series, it's chapter number 1 of your 8th class subject science. So let's start. So we are going to start this chapter with some terms and their meanings, because these are some advanced terms, or these are some the terms which are going to helpful for you throughout this chapter, and without knowing their meaning we can't understand this chapter. So we are going in a very simple way and step by step way, so as to understand this chapter very keenly and very carefully. So we are starting with the first term, that is spirit. The first term, that is spirit. Spirit means point of view. It's not a medical spirit, or it's not an social spirit. It's an spirit which means point of view or approach, how you see the things. It is called a spirit. So how your point of view is there, how you approach is, that is called a spirit. The second term is curiosity. Curiosity, you have heard this word so many times, curiosity. The curiosity means a desire to know or learn something. Means you can able to know or learn something, means a wish to know something. एक ऐसी इच्छा होती है जिसे हम, जिसके द्वारा हम कुछ ना कुछ तो भी जान सकते हैं. It is called as curiosity. Then next comes the adventure. You have heard I think you have heard the word adventure so many times. Adventure means an experience or event that is very unusual, exciting or dangerous. Adventurous means it will be an event. It's an event or experience that can be unusual, means uncommon or rare. It can be exciting or dangerous. The experience, adventure means it will be an experience or event, but that experience or event may be unusual, rare, exciting or dangerous. That is called as adventure. The next one is investigation. If you are seeing the serials on Sony TV or Setmax, like a CID, Crime Investigation Department, CID, the full form of CID. So investigation means inquiry, chanbin, and or you have to elaborate that meaning of that term. You can elaborate in this way that investigation means to find or search something. किसी चीज को ढूंढना, किसी चीज को समझना, ढूंढना, उसे हम कह सकते हैं investigation. It is called as investigation. And the next one is exploration, which is the title of your chapter. It is exploring or exploration. Exploring means act of traveling थ्रू अननोन प्लेस टू नो अबाउट इट. किसी ऐसी जगह पे से सफ़र करना या ट्रैवलिंग करना जिस जगह पर आप पहले गए ही नहीं हो, एक अननोन जगह पर जाना और उस जगह को जानना, उसे हम कहेंगे एक्सप्लोरेशन. एक्सप्लोरेशन मीन्स किसी नए जगह पर जाना, किसी अननोन जगह पर जाना, और उस जगह पे जाने के बाद में उस जगह को समझना. इट इज कॉल्ड एज एक्सप्लोरेशन. Act of traveling through unknown place to know about it. किसी ऐसी जगह पे जाना जो आपके लिए अननोन हो, मतलब आपने कभी उस जगह पर गए ही नहीं, उस जगह पे जाना, उस जगह का सफ़र करना, और उस जगह पे जाने के बाद में उस जगह को समझना. इट इज कॉल्ड एज एक्सप्लोरेशन. अनयूजुअल. अनयूजुअल मीन्स अनकॉमन और रेयर. ऐसी चीज़ जो मतलब कॉमन नहीं है, उसे हम कहेंगे अनयूजुअल. डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि आपके क्लास में टीचर्स आके बोलते होंगे कि डिस्ट्रीब्यूट दिस बुक. डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है ये बुक्स को आगे शेयर कर देना, दे देना, स्प्रेड करना. मतलब जब कोई टीचर बुक्स चेक करता है और चेक करने के बाद में वो क्लास में आकर बोलता है डिस्ट्रीब्यूट दिस बुक,
इट मीन्स शेयरिंग और स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग भी होता है इसका मतलब, पर अगर समझना है तो शेयरिंग आप समझ सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स शेयरिंग। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज एनेबल्ड। एनेबल्ड मीन्स अलाउ और परमिट, किसी चीज को परमिशन देना, अलाउ करना, परमिशन देना, उसे हम कहेंगे एनेबल्ड। किसी चीज को इजाजत देना, इट इज कॉल्ड एज एनेबल्ड। पफ्स, पफ्स का मतलब है स्वेलअप होना, फूलना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने बलून में एयर भरी, हवा भरी, इट गेट्स इन्फ्लेटेड, मतलब फूलता है, तो उसे हम कहेंगे स्वेलअप। या फिर जब आपकी मम्मी किचन में रोटी वगैरह बनाती है, तो रोटी बनाने के वक्त में वो रोटी स्वेलअप हो जाती, मतलब पफ हो जाती, फूल जाती। या फिर पूरी जो वगैरह बनाते हो तो वो स्वेलअप हो जाती, फूल जाती है। इट इज कॉल्ड एज पफ, मतलब स्वेलअप होना, फूल जाना। नेक्स्ट वन इज अबाउट द फैंसी। फैंसी मीन्स हाईली एडवांस, एक ऐसी चीज जो फुल्ली एडवांस है, हाईली एडवांस है, इट इज कॉल्ड एज फैंसी। जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड है, ये सिंपल बोर्ड है, पर जैसे अभी कुछ टीचर स्मार्ट बोर्ड यूज करते हैं, इट इज कॉल्ड एज फैंसी बोर्ड, मतलब हाईली एडवांस बोर्ड है। उसमें आप कंप्यूटर भी लगा सकते हो, उसमें आप यूट्यूब वीडियोज भी देख सकते हो, उसमें आप तरह तरह के राइटिंग्स की मेथड्स हैं वहाँ पर, वो भी यूज कर सकते हो। सो इट इज कॉल्ड एज फैंसी। फैंसी का मतलब हाईली एडवांस। जैसे कि ये सिंपल बोर्ड है और स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड जो है वो फैंसी बोर्ड है। Then the next and the last meaning of our term is consequences. Consequences मतलब होता है रिजल्ट या आउटकम। तो मतलब रिजल्ट निकाल और आउटकम, बस इतना ही इसका मीनिंग है। सो ये सब कुछ मीनिंग्स थे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर में, बिकॉज इसी के ऊपर जो आपके हैं कुछ कुछ कंसेप्ट बने हैं या फिर कुछ कुछ कंसेप्ट में ये वर्ड्स यूज़ किए गए। अगर आपको ये वर्ड्स ने का मीनिंग नहीं समझेगा तो आपको कंसेप्ट भी नहीं समझेगा, इसलिए मैंने सेपरेटली लिखा है ताकि आपको समझ सके। सो नाउ लेट्स हैव एन इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर। व्हाट इज देयर इन दिस चैप्टर, व्हाट आर द टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, एंड throughout this chapter what we are going to learn. So we are going to learn this step by step. So let's start. So we are going to start with an introduction. So in this chapter you are going to learn the world of science with curiosity, which brings the spirit of adventure and exploration. So during this chapter you are going to learn so many things, but you have to learn this chapter in curiosity way. And due to that curiosity it brings the spirit of adventure and exploration. So during this chapter so many things are going to be uncovered, or so many things which are unknown to you will be get known to you during this chapter. And grade 8, that is class 8, science focuses more on curiosity and investigation. So this 8th class science subject focuses more on curiosity and investigation. So जो आपका 8th क्लास है, क्लास 8 जो है आपका जो साइंस सब्जेक्ट है, उसमें आपको ज़्यादातर क्यूरियोसिटी देखने को मिलेगी, मतलब कुछ नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी या फिर नई नई चीज़ें आपको सीखने की इच्छा होगी। और इसमें कई सारी चीज़ें ऐसे रहेंगे जिसको आप जानने की इच्छा रखोगे, दैट इज इन्वेस्टिगेशन। आफ्टर दैट अगर आप कोई भी चीज़ इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद आपको एक ऐसा मन में विश रहेगी कि काश इसे मैं और जान पाता, और आपको जानने की इच्छा जो रहेगी वो बढ़ जाएगी इस चैप्टर के साथ में। आफ्टर दैट इन दिस बुक यू आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न अबाउट द हिडन टाइनी वर्ल्ड ऑफ साइंस, मतलब जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब एक ऐसे लिविंग थिंग्स होते हैं जिनकी साइज बहुत छोटी होती है और उसे आप खुली आंखों से, मतलब नेकेड आई से आप देख ही नहीं सकते हो। सो इन दिस चैप्टर यू आल्सो गोइंग टू अनकवर, मतलब अनकवर का मतलब होता है मालूम करना, किसी चीज़ को खोलना, किसी चीज़ को अनकवर करना, मतलब कोई चीज़ छुपी हुई है उसको उजागर करना, इसे कहा जाता है अनकवर। अनकवर मीन्स टू ओपन द थिंग्स और टू नो द हिडन थिंग्स, इट इज कॉल्ड एज अनकवर। तो आप इस चैप्टर में ये भी देखने वाले हैं कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कैसे उनके टाइप्स होते हैं, धीरे धीरे आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। और
ये भी समझेंगे कि उसको देखा कैसे जा सकता है। आपके खुले आंखों से आप उसको नहीं देख सकते, उसके लिए आपको एक डिवाइस लगेगा माइक्रोस्कोप, उसके द्वारा आप उसको देख सकते हैं। और यही सब चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। उसके बाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कैन बी हार्मफुल और यूजफुल टू यू। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, एक यूजफुल भी होते हैं, एक हार्मफुल भी होते हैं। जिसकी वजह से आपको कुछ तकलीफें होंगे, डिसीज होंगे, वो रहेंगे हार्मफुल। जिसकी वजह से आपको कुछ फ़ायदा होगा या फिर जिसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेंगी, दे आर कॉल्ड एज यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड इन द लास्ट, इफ यू वांट टू स्टे हेल्दी और फिट एंड फाइन, सो यू शुड हैव न्यूट्रिशियस फूड। मतलब अगर आपको तंदुरुस्त रहना है, हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो आपको न्यूट्रिएंट से भरा हुआ फूड खाना पड़ेगा। मतलब न्यूट्रिशियस फूड मतलब अ फूड विच कंटेन न्यूट्रिएंट्स। मतलब एक ऐसा फूड जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हो, जिसके अंदर प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, विटामिन्स हो और कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हो और भी मिनरल्स वगैरह हो, ऐसा फूड आपको खाना चाहिए। इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशियस फूड। न्यूट्रिशियस फूड मीन्स द फूड विच कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स, एंड न्यूट्रिएंट्स मीन्स द पार्ट द फूड। न्यूट्रिएंट्स मतलब द कंटेंट्स प्रेजेंट इन द फूड। न्यूट्रिएंट्स मतलब एक ऐसे घटक होते हैं जो फूड में आपके प्रेजेंट होते हैं और जिसकी वजह से आपको एनर्जी मिलती है। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, उसके बाद में विटामिन्स, दिस आर द न्यूट्रिएंट्स। And in the last, if needed, you can able to take vaccines and medicines. What is vaccine? What is medicine? You are going to learn in the third or fourth chapter. But simply, if you want to know, this both are the helpful for the humans. Medicines and vaccines. These both are helpful for the humans to cure from the disease. बीमारी को भगाने के लिए, बीमारी से दूर रहने के लिए ये दोनों भी चीज़ें लगती है। मेडिसिन आपको मालूम होगा, पैरासीटामोल हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गए, ये मेडिसिन होते हैं। और वैक्सीन मतलब जैसे कि बीच में अभी पेंडेमिक जो आया था 2020 में, उस वक्त हमने एक वैक्सीन लिया था, दैट इज कोरोना वैक्सीन। सो वैक्सीन मतलब एक लिक्विड फॉर्म में होता है, इसके अंदर कुछ कमज़ोर किए हुए माइक्रोब्स होते हैं, वो आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति जनरेट होती है। वो धीरे धीरे हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना याद रखो, सिर्फ अगर आपको फिट रहना है तो ये सब चीज़ें आपको करना पड़ेगा। न्यूट्रिशियस फूड लेना पड़ेगा, मेडिसिन लेना पड़ेगा, ज़रूरत गिरे तो वैक्सीन लेना पड़ेगा। और उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा। डेली 15 से 20 मिनट या आधा घंटा तो बहुत अच्छी बात है, पर 15 से 20 मिनट तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है टू स्टे फिट एंड हेल्थी। सो दिस वॉज एन इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग दिस चैप्टर। सो नाउ अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज साइंस इन इम्प्रूविंग आवर लाइफ्स का मतलब होता है अपनी लाइफ, ज़िंदगी। सो कैसे साइंस ने हमारी ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश की है और बेहतर बनाई है, कोशिश नहीं की है, बनाई ही है। सो जो भी हम इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वो आज हमको देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ द साइंस। वी यूज़ इलेक्ट्रिक करंट टू चार्ज आवर मोबाइल, or we use electric current to switch on the fan, to switch on the lights. It is only because of the science. After that, we use electric heaters to warm our room. In winter season, we usually use the room heaters, which are helpful to warm the room. हम ठंडकाले में, ठंडी के मौसम में यूज़ करते हैं रूम हीटर्स। उसकी वजह से पूरा घर जो है वो गर्म रहता है। और जो भी रूम हीटर्स है या फिर गीज़र्स जो होते हैं, मतलब गीज़र मतलब पानी गर्म करने के एक अप्लायंसेस होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से पानी गर्म होता है। और वो दीवार पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब वॉल हीटर्स भी आते हैं, और जो आप घर में यूज़ करते हैं, जिसमें बकेट में अगर आपने हीटर डाल दिया तो बकेट में का जो पानी वो गर्म हो जाएगा स्विच ऑन करने के बाद। तो ये सभी के सभी जो भी अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, इन सभी का इन्वेंशन किया है साइंस ने, और साइंस की वजह से ही ये सक्सेसफुल हो पाया है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ये तो बहुत ही कम चीज़ मैं बोला हूँ आपको, हर एक चीज़ जिसकी वजह से आप कंफर्टेबल फील करते हो वो आज इस दुनिया में है बिकॉज ऑफ साइंस। और जैसे कि आप गाड़ी चलाते हो या फिर एरोप्लेन से कहीं ट्रैवलिंग करते हो, ट्रेन हो गई, बस हो गई, ये सभी जितने भी चीज़ें हैं, 90 to 95% जितने भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप कंफर्टेबल महसूस कर सकते हो, आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है, उसका रीज़न है साइंस। सो वी यूज़ इलेक्ट्रिक करंट टू लिव ईजियर,
we use electric heaters, geysers, motor machines used by us. These all invention have been done by science, and because of science only we can able to live a luxurious life. Luxurious मतलब comfortable life. एक शानदार जिंदगी जीने के लिए ही हमको साइंस की बहुत ज़रूरत होती है, और उसी की वजह से हमारी जो लाइफ है वो शानदार बन सकी है. लग्जरियस मीन्स कंफर्टेबल. सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ साइंस हैव improved our life. So if you are having any doubt regarding this topic or any other topic, you can just comment me. So this was about our topic, that is science in improving our lives. So our next part is about force. It's not too much lengthy topic in your textbook, but to have an extra information or to understand that concept, I have given this topic, or I have written this topic on the board so as to make this chapter more easier for you. So let's begin with force. So force usually means in our day-to-day life, force means strength or power, ताकत or energy. But when we move towards the physics in science, physics is a subject of science. Physics has different meaning for force. So force in physics means a push or pull on an object. A push or pull on an object is called as force. मतलब किसी चीज को खींचना या फिर ढकेलना, ढकेलना या फिर खींचना, कैसे बोल सकते हैं आप. पुश मतलब ढकेलना और पुल मतलब खींचना. अगर किसी चीज पर आप किसी चीज को पुल कर सकते हो या पुश कर सकते हो तो उसे हम कहेंगे फोर्स. मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस बोर्ड को ऐसा पुश कर रहा हूँ, ढकेल रहा हूँ, मतलब मैं इस बोर्ड पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ. या फिर मैं इस बोर्ड को खींच रहा हूँ, मतलब पुल कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं इस बोर्ड पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ. तो फोर्स इज नथिंग बट अ पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट. किसी चीज को ढकेलना या खींचना, इसे हम कहेंगे फोर्स. और जब ये फोर्स किसी एरिया पर आप शेयर करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, स्प्रेड करते हो, तो उस एरिया पर जो फोर्स रहता है, अब उसे हम कहेंगे प्रेशर. जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपके पास फोर्स है, आपके पास ताकत है, पर जब आप ये फोर्स किसी एक जगह पर, किसी एक एरिया पर अप्लाई करते हो, तो अब वो फोर्स को हम कहेंगे प्रेशर. मतलब आपके पास फोर्स है, एनर्जी है, ताकत है, पावर है, सब है, पर जब आप इसको किसी एक जगह पर, मतलब मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ फोर्स इस जगह पर, तो इसका मतलब मैं इस जगह पर प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ. सो व्हेन अ फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन ऑब्जेक्ट, इट डेवलप्स प्रेशर. जब आप फोर्स किसी एक जगह पर अप्लाई करते हो तो तब वो फोर्स को हम कहेंगे प्रेशर. और ये प्रेशर कहीं पर भी बन सकता है. जमीन पर बन सकता है, पानी में बन सकता है, और हवा में भी बन सकता है. पर जब ये प्रेशर हवा में बनता है तो ये प्रेशर की वजह से, प्रेशर बढ़ने की वजह से वो हवा का एक अलग ही रूप हो जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कि बहुत जोर से हवा चल रही है. हवा तो अभी भी है, अभी हमारे आजू बाजू भी हवा है, एयर है, पर जब ये हवा में प्रेशर बढ़ जाता है, फोर्स बढ़ जाता है, तो वो हवा का एक अलग ही रूप हो जाता है. आप देखिए, कभी आंधी तूफान आती है तो जोर जोर से हवा चलती है. इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर, और प्रेशर गेट इंक्रीज इन दैट एयर. एयर का प्रेशर जब बढ़ता है तो जोर जोर से हवा चलती है, और उसी की वजह से आगे जाकर कुछ तबाही होती है, कुछ डिजास्टर्स आते हैं, कुछ तूफान आता है, और उसी को हम कहते हैं साइक्लोन. अभी साइक्लोन क्या है? साइक्लोन इट्स एन टाइप ऑफ वायलेंट विंड. मतलब एक जोर से हवा चलती है, और ये हवा क्या होती है, जैसे कोई नदी है या फिर कोई समंदर है, एक बड़ी सी नदी है, समंदर समझ लो, कोई बड़ा सा ओशन है, समंदर है, तो उसके ऊपर क्या होती है, उसके सरफेस के ऊपर, उसके ऊपर के पार्ट के ऊपर, समंदर जहाँ होता है वहाँ पर जोर से हवा चलती है. और ये हवा कैसे चलती है? सर्कुलर मैनर में, गोल गोल चलती है. और वो गोल गोल हवा चलने की वजह से नीचे प्रेशर बन जाता है. वो गोल गोल हवा चलने की वजह से वो प्रेशर जो है हवा का, वो नीचे आ जाता है पानी के सरफेस के ऊपर, और वो पानी भी अब गोल गोल घूमने लगता है.
और ये जो प्रेशर है, जो फोर्स है, ये बड़े पैमाने पर होता है, लार्ज अमाउंट में होता है। और इसी एयर प्रेशर की वजह से, इसी फोर्स की वजह से, जो कि सर्कुलर मैनर में हो रहा है, जो वाटर की सरफेस है वो भी अब गोल गोल हो जाता है, गोल गोल घूमने लगता है। और इसी की वजह से एक डिजास्टर होता है, एक तूफान होता है, उसका नाम होता है साइक्लोन। चक्रवादल जिसे कहा जाता है, हिंदी में मराठी में चक्रवादल कहते हैं उसको। एक प्रकार का डिजास्टर, एक प्रकार का तूफान है जो यूजुअली पानी में होता है। अगर यही तूफान जमीन पर हुआ तो इसको हम टोर्नेडो कहेंगे। दोनों भी तूफान ही है, साइक्लोन और टोर्नेडो दोनों भी तूफान ही है, पर होने की जगह अलग अलग है। टोर्नेडो आपको देखने को मिलेगा जमीन के ऊपर, साइक्लोन आपको देखने को मिलेगा पानी के ऊपर। अगर पानी के ऊपर एयर का प्रेशर बढ़ गया, हवा बढ़ गई, फोर्स बढ़ गया, तो वो सर्कुलर मैनर में घूमती है, और वो घूमने की वजह से जो पानी के ऊपर का जो सरफेस है वो भी गोल गोल घूमने लगता है। और ये गोल गोल घूमते 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 इतना बड़ा हो जाता है, तो इसे हम ये साइक्लोन कह देते हैं। वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसे आखिरी में तूफान का रूप ले लेता है, और उसे ही कहा जाता है साइक्लोन। सो साइक्लोन इज नथिंग बट अ वायलेंट विंड। वायलेंट का मतलब होता है ह्यूज, वायलेंट विंड दैट मूव्स इन सर्कुलर फॉर्म ओवर वाटर causing storm. So cyclone is nothing but an violent wind, बहुत बड़ी विंड, हवा जो सर्कुलर फॉर्म में घूमती है पानी के ऊपर, और उसी की वजह से आगे जाके तूफान बनता है। ये कुछ पॉइंट्स थे, जो बेसिक पॉइंट्स थे, और ये पॉइंट देना ज़रूरी थे, क्योंकि ये पॉइंट आगे आपको चैप्टर नंबर आगे जो भी है फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के ही उसमें काम आएंगी। दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन दिस टॉपिक very clearly and very deeply and very detailed manner I have told you. So now about the states of matter. So there are three states of matter, that is solid, liquid and gases, and we are going to learn this all the three states of matter in very easy way. So we will begin with the solid state. In this state, the molecules which are present in that object are very close to each other. They usually don't have any space in between them, and that's why because of that only that objects comes in solid state. मतलब solid state एक ऐसी स्टेट है मैटर की जहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर, वो बहुत ही एक दूसरे को कॉम्पैक्ट पोजीशन में होते हैं, मतलब एक दूसरे एकदम क्लोजली चिटके हुए होते हैं वो, और उनमें बहुत ही कम या फिर नहीं के बराबर जगह होती है, स्पेस होती है। सो सॉलिड स्टेट एक ऐसी स्टेट है मैटर की जहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बीच में का जो जगह है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में की जो स्पेस है वो लगभग नहीं के बराबर होती है, और रही तो बहुत ही कम होती है। और सॉलिड स्टेट के अगर आपको एग्जांपल देखना है तो आप ले सकते हैं आइस, बर्फ, उसके बाद पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर और एक्सेट्रा, बेंच। तो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्टेट। इसमें याद क्या रखना है कि सॉलिड स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है मैटर की जहाँ पर ऑब्जेक्ट जो होता है सॉलिड स्टेट में, उसके जो मॉलिक्यूल्स है, जो पार्टिकल्स है, वो उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है वो बहुत ही कम होती है या फिर नहीं के बराबर होती है। अगर स्पेस रही तो बहुत कम रहेंगी या फिर नहीं के बराबर रहेगी। उसके बाद आता है लिक्विड स्टेट। अब नाम से ही आपने लिक्विड बहुत बार सुना होगा, ये सेकेंड स्टेट है मैटर का। सो लिक्विड स्टेट में होता क्या है, पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें थोड़ा स्पेस आ जाता है, जैसे कि सॉलिड स्टेट में नहीं होता है। पर लिक्विड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उनमें जगह थोड़ी सी आ जाती है, जो स्पेस रहता है उनके बीच में। सो लिक्विड इज अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच यू कैन एबल टू सी सम स्पेस इन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड स्टेट्स आर water, then juices like apple juice, pineapple juice, lemon juice, whatever it may be, coconut water, coconut का juice नहीं, coconut water. These are the examples of liquid state. And the last state is of gaseous state. गैस, नाम तो सुना ही होगा, बड़े बड़े शहरों में गैस मिलते हैं, तो नाम सुना ही होगा आपने गैसेस के बारे में। सो गैसेस जो है वो थर्ड स्टेट है मैटर की। और गैसेस में क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, और उसी की वजह से
उनमें जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होती है, या फिर हाँ बहुत ज़्यादा ही कहेंगे हम, बहुत ज़्यादा स्पेस होती है उनके बीच में। अगर आप डायग्राम देख पा रहे हैं गैसेस का, तो देखो वो जो पार्टिकल्स है ना गोल गोल सर्कल से शेप के, उन दोनों के बीच में बहुत जगह है। एंड दैट्स व्हाई द गैसेस कैन इजीली एबल टू स्प्रेड इन द एनवायरनमेंट। जो भी गैसेस रहेंगे वो इजीली स्प्रेड होते हैं। सॉलिड स्टेट नहीं हो सकते, लिक्विड हो सकते हैं पर बहुत कम इससे स्प्रेड हो सकते हैं, पर गैसेस जो रहेंगे वो बहुत दूर दूर तक स्प्रेड होते हैं इजीली। सो गैसेस के एग्जांपल है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे बहुत सारे गैसेस है उसके एग्जांपल। तो इसमें तीनों में बात एक ही याद रखना है, मॉलिक्यूल स्पेस, मतलब जो मॉलिक्यूल्स है उनमें स्पेस कितना कितना है, बहुत कम है, नहीं के बराबर है, मतलब वो सॉलिड स्टेट है थोड़ा मतलब मीडियम लेवल का स्पेस है, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, थोड़ा है स्पेस, तो लिक्विड। और बहुत ज़्यादा स्पेस है तो समझ लेना कि वो जो स्टेट है वो गैसियस है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर। सो नाउ अबाउट द एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। सो विल स्टार्ट विद द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मीन्स प्योर सब्सटेंस, मीन्स सब्सटेंस विच डोंट हैव एनी टाइप ऑफ मिक्सअप इन इट। एलिमेंट्स मतलब एक ऐसी चीज़ें रहेंगे, ऐसे सब्सटेंस रहेंगे जिसमें कोई दूसरे प्रकार का, कोई दूसरे टाइप का मिक्सअप नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल आपने अगर ऑक्सीजन लिया, जैसे कि ये ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है O2। आपने इसको कितना भी तोड़ा या फिर कितना भी चेक किया तो इसको तोड़ने के बाद में ही आपको ऑक्सीजन ही मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही मिलेगा। मतलब ऐसी कोई चीज़ जो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप से बनी है, एक ही चीज़ से बनी है, या फिर उसके अंदर एक ही एटम हो, एटम मतलब इसे एटम कहा जाता है। ये ऑक्सीजन है, इसके जो अब ये जो है इसे आप कह सकते हैं एटम। एटम याद रखने की जरूरत नहीं, बस याद ये रखो कि एलिमेंट मतलब प्योर सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही टाइप से बना है, एक ही चीज़ से मिलकर बना है। अगर आपने ऑक्सीजन को जितना चाहे उतना तोड़ा, कितने भी बार अगर तोड़ा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही मिलेगा। इन द सेम वे कार्बन एक होता है। अब अगर आपने यहाँ पर कार्बन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बोल रहा हूँ मैं, कार्बन बोल रहा हूँ। अब आपने कार्बन को कितना भी बार तोड़ा तो आपको कार्बन ही मिलेगा, कार्बन के बजाय हाइड्रोजन नहीं मिलेगा या फिर नाइट्रोजन नहीं मिलेगा। इन द सेम वे और एक होता है यहाँ पर नाइट्रोजन। आप आगे पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन में, फिलहाल के लिए याद रखो नाइट्रोजन का फॉर्मूला है N2। अब आपने नाइट्रोजन को कितना भी तोड़ा, कितना भी कुछ भी किया तो आपको नाइट्रोजन से नाइट्रोजन ही मिलेगा। मतलब जो चीज़ है तोड़ने के बाद में अगर आपको वही चीज़ मिलती है, वही चीज़ कंटेंट मिलता है, इसका समझ लेना कि वो एलिमेंट है। एलिमेंट मीन्स द प्योर सब्सटेंस एंड इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम और वन काइंड ऑफ सब्सटेंस एंड इट इज कैन बी ब्रोकन डाउन टू सिंपल फॉर्म। उसका सिंपल फॉर्म होता ही नहीं, वो खुद एक सिंपल फॉर्म है। जैसे कि अगर आपने ऑक्सीजन को कितना भी तोड़ा तो उससे ऑक्सीजन ही मिलेगा, हाइड्रोजन को कितनी बार तोड़ा तो हाइड्रोजन ही मिलेगा। सो इन द सेम वे इट इज कॉल्ड एज एलिमेंट। एलिमेंट में याद क्या रखना है, इट्स एन प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस एंड विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म। एग्जांपल्स आर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। You can also take example of nitrogen also. It is a element. एलिमेंट मतलब जो सिर्फ एक ही चीज से मिलकर बना है। नाइट्रोजन नहीं रखना तो मत रखो, पर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन रख सकते हैं आप। These are the simple substance or you can also call it elements. Now about the compounds. Compounds are the substance which are made up of two or more than two elements. So these are the elements like oxygen, carbon, hydrogen. These are the elements. Elements means pure substance and compounds means, compounds का मतलब होता है ऐसे चीजें जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने हैं। ऐसी चीजें जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर, एलिमेंट से मिलकर बने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने से एग्जांपल लिया तो शुगर या सॉल्ट। सॉल्ट से हम शुरू करेंगे। अभी सॉल्ट जो होता है, सॉल्ट का फॉर्मूला ये होता है NaCl। NaCl इज एन फॉर्मूला फॉर सॉल्ट, नमक। NaCl।
और जब आप NaCl को तोड़ते हो कुछ केमिकल्स की मदद से, कुछ केमिकल ट्रीटमेंट देकर अगर आप उसको तोड़ते हो तो उससे दो चीज़ें बनेंगे, एक Na मिलेगा, एक Cl मिलेगा। पर एलिमेंट में वैसा नहीं था। अगर आपने नाइट्रोजन को तोड़ा तो नाइट्रोजन ही मिलेगा, ऑक्सीजन को तोड़ा तो ऑक्सीजन ही मिलेगा। पर कंपाउंड्स में ऐसा होता है बेटा, अगर आपने सॉल्ट लिया, उसका फॉर्मूला है NaCl, और जब आप उसको केमिकली तोड़ते हो, ब्रोकन केमिकली, so you can able to find two types of elements in it, Na and Cl. So the compounds are the substance which contains two or more than two types of elements, or two different types of elements. So now you can call these things as elements, Na and Cl. If you trying to break this Na, then you will get only Na. It is sodium, or written it as Na. And when you are breaking this Cl, chlorine, you will be able to get only chlorine only. पर अगर आपने सॉल्ट को तोड़ा तो सॉल्ट से आपको Na अलग मिलेगा और Cl अलग मिलेगा. That's why it is called as compounds. So compounds are the substance which are made up of two or more than two elements, or two or more different elements, and it can't be separated physically. इसको आप फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब हाथों से मैन्युअली आप सेपरेट इसको नहीं कर सकते. अगर आपको इसको सेपरेट करना है, तोड़ना है, तो आपको केमिकल की जरूरत लगेगी. आफ्टर दैट अगर आपको और एग्जांपल लेना, शुगर, शक्कर. अब आपको शक्कर दिख रही होंगी, एक टाइप की है, पर एक उसके अंदर एक कंटेंट नहीं होता है. शुगर के अंदर आपको तीन कंटेंट देखने को मिलेंगे, या फिर तीन एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे. कौन से? पहला है कार्बन C, दूसरा है हाइड्रोजन H, और तीसरा है ऑक्सीजन. सिर्फ सिंगल ऑक्सीजन एटम होता है उसके अंदर. सो दिस शुगर हैज 3 एलिमेंट इन इट, कार्बन, हाइड्रोजन, एंड लास्ट वन इज ऑक्सीजन. So when you combine this carbon, hydrogen, oxygen, it makes a sugar. But आपको यहाँ पर ये देखना है कि ये कंपाउंड है कि नहीं. तो अगर शुगर को अगर आप समझते हैं तो शुगर के अंदर होता है 3 एलिमेंट, कार्बन C, हाइड्रोजन H, और ऑक्सीजन O. जब आप इसको तोड़ते हो केमिकली, when you broke this sugar chemically, you can able to find 3 different elements are there, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो ये एलिमेंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. बट जब इन तीनों को मिक्सअप किया गया तो उसकी वजह से एक चीज बनी, उसका नाम था शुगर. जैसे कि ये दो है, Na और Cl. ये Na एक एलिमेंट है, Cl एक एलिमेंट है, पर इन दोनों को जब आप मिक्सअप करोगे, Na प्लस Cl, जब आप दोनों को मिलाओगे तो उससे बनेगा NaCl, और इसको कहा जाता है बेटा सॉल्ट. इन द सेम वे दिस आर एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों भी एलिमेंट है. अगर आप इन तीनों को मिक्सअप करोगे तो आपको देखने को मिलेगा, इससे बनेगा CHO, और इसी को हम कहेंगे शुगर. शुगर के अंदर एक कंटेंट होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. सो कंपाउंड्स आर द सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स. CHO ये एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. अगर आप सिंगल ले लेंगे तो एलिमेंट है, तीनों को मिक्सअप करेंगे तो एक कंपाउंड बनेगा, और कंपाउंड का नाम रहेगा शुगर. इन द सेम वे Na is a element, Cl is a element, but when you combine it, it will form salt. Now next is about mixture. मिक्सचर में और कंपाउंड में, मिक्सचर में और कंपाउंड में फर्क एक होता है कि कंपाउंड्स को आप फिजिकली हाथों से सेपरेट नहीं कर सकते. उसको अगर आपको सेपरेट करना है तो केमिकल का यूज करना पड़ेगा, केमिकली आप उसको सेपरेट कर सकते हो. पर मिक्सचर में वैसी बात नहीं. मिक्सचर भी दो से चीजों से मिलकर बनता है, पर मिक्सचर को आप हाथ से इजीली सेपरेट आउट कर सकते हो. सो मिक्सचर इज अ मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस. मिक्सचर एक ऐसा है जिसको जो बनता है 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनता है मिक्सचर, और आप उसको हाथों से फिजिकली, मैनुअली आप उसको इजीली सेपरेट आउट कर सकते हो. ये होता है मिक्सचर. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने जेम्स का नाम सुना होगा, जेम्स की गोलियां आती है कैडबरी की. तो आप एक बार 5 रुपये का वो पैकेट आता है, उसको फाड़ो, आपको देखने को मिलेगा जो गोलियां उसके अंदर की वो अलग अलग रंगों के होते हैं.
जब आप उस गोलियों को एक बाउल में लेते हो, एक कटोरे में लेते हो, देन यू कैन एबल टू फाइंड different types of jelly bean, different types of gems are there in that, and you can easily separate out them without using the chemicals. In the same way, you can also take the example. For example, take a bowl, एक कोई पतीला ले लो, then keep in that bowl some fruits like apples, then you can keep banana, then you can keep pineapple, then you can keep mud apple, custard apple. ऐसे 5 से 4 से 5 टाइप्स के फ्रूट्स उसके अंदर रख दो आप, और उस जब बॉल में आप देखेंगे आप, तो आपको देखेंगे कई डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स है उसके अंदर, और आप उसको इजीली सेपरेट आउट कर सकते हो आराम से हाथों से. सो ऐसी चीज़ों को हम कहेंगे इट्स एन मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स. फॉर एग्जाम्पल यू कैन ऑल्सो टेक दिस. ये एक है मेरे पास अभी, ब्लैक मार्कर है, रेड मार्कर है और ग्रीन मार्कर भी है. ये रहा, ये मेरे पास 4 डिफरेंट कलर्स के मार्कर है, ब्लैक, रेड, ग्रीन और ब्लू. अब मैंने इनको ऐसे हाथ में रख दिया, तो ये हो गया मिक्सचर. मिक्सचर मतलब एक ऐसे मिक्सचर का मतलब होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनता है, और उन चीज़ों को आप हाथ से फिजिकली इजीली सेपरेट आउट कर सकते हो. इट इज़ कॉल्ड एज मिक्सचर. ये रहा मिक्सचर. और वहीं पर अगर मैं लेमन जूस लेता हूँ, मतलब नींबू पानी. अब नींबू पानी में क्या होता है, पानी होता है, लेमन होता है, लेमन का जूस होता है, थोड़ा सा शुगर होता है, थोड़ा सा सॉल्ट होता है. जब आप इसको मिक्सअप करोगे तो ये मिक्सचर नहीं रहेगा, ये बनेगा कंपाउंड. और इसको आप मिक्सअप करने के बाद में हाथ से अलग अलग नहीं कर सकते हो. कभी देखा है कि लेमन जूस आपने लिया, हाथ से शुगर अलग कर रहे हो, सॉल्ट अलग कर रहे हो, उसके बाद में लेमन जूस अलग कर रहे हो? ऐसा नहीं होता है. मतलब जो ईजिली सेपरेट आउट हो सकता है, जिसको आप इजीली अलग अलग कर सकते हो हाथों से, वो होता है कंपाउंड. जिसको हाथों से जिसको इजीली आप सेपरेट आउट कर सकते हो वो है मिक्सचर, और जिसको आप इजीली सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो वो है कंपाउंड. फिर से एक बार हम देख लेंगे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर. एलिमेंट्स मतलब जो प्योर सब्सटेंस होता है, जो एक ही चीज से मिलकर बनता है. एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. कंपाउंड्स मतलब जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बनता है, सॉल्ट, शुगर. और कंपाउंड्स को आप हाथों से सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो. अगर आपको कंपाउंड को सेपरेट करना है तो उसके लिए आपको केमिकल की ज़रूरत लगेगी. वहीं पर मिक्सचर भी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनता है, पर मिक्सचर की एक खासियत होती है आप इसको इजीली हाथों से सेपरेट आउट कर सकते हो. याद यही रखना है कि किसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं, किसको इजीली सेपरेट नहीं कर सकते. जो इजीली सेपरेट आउट हो सकता है उसे हम कहेंगे मिक्सचर, जो इजीली सेपरेट आउट नहीं हो सकता है उसे हम कहेंगे कंपाउंड. सो दिस वाज ऑल अबाउट द एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर.